Hello everyone, my name is Bahadur Mori and I am an English and SS teacher in Sahajan English Medium School at Nate Juna. So we continue our chapter number 2, Culture Heritage of India, Traditional Handicraft and Fine Arts, right? In the previous video, we talked about art of Indian artisans, clay work, art of weaving, hand weaving, right? Art of embroidery, leather industry, and leather industry, right? So we have completed this all the point, right? So now we reach the diamond, beadwork, and enamel work, right? So now I'm going to start, and I will read every line and explain my way. So please listen very carefully and use your hands free. So much better to voice quality. Now diamond bed work and enamel work. So what exactly that we get the information about from this paragraph. India has a 7,517 kilometer long coastline surrounding all three directions. Please underline. I know you all the know about it. See, this is very important point. India has a 7,517 kilometer long coastline surrounding all three directions. The Indian three direction, right, west, east and south, right, this is the three direction. India have a long coastline, बहुत बड़ा समुद्र की हमारे पास सीमा है, 7,517 किलोमीटर, 7,517 kilometers. That is a huge, large. So east, west and south, these three साइड में है वो, ठीक है. So diamond and beads are available in a plenty, right? Underline this also. अगर आपसे पूछा जाए कि भाई diamond और beads are available in plenty in the India, how, right? How does the diamond and beads, how do the diamonds and beads are available in plenty in the India? So you can say that India has a 7,517 kilometer long coastline surrounding all three directions, east, west and south. So diamond and beads are available in a very plenty way. Plenty, that means huge, right? तो काफ़ी मात्रा में मिलता है. There has been a wide use of gems and diamonds since the ancient times. That we know that in the ancient time, all the Raja, Maharaja, kings and lords and all that, they use diamonds, gems for his showing up. अपने को दिखावा के लिए, showing up के लिए they use them gems and diamonds and all that. That very precious, the gems and diamonds and all that. अपनी शान और शौकत से एंशियंट टाइम से जेम्स और डायमंड्स काफ़ी फेमस है और काफ़ी प्रोमिनेंट है. Since ancient time, a trade of diamonds and beads was carried out through the sea route with different countries across the sea. जरा इसको हाईलाइट कर लो, because of the see in the ancient time maximum trading through the sea route, ठीक है. The trade of diamond and beads was carried out through sea route with different countries across the sea, right? So diamond and beads the business is carried out through the sea route, ठीक है, with the different countries across the sea. उससे द्वारा होता था. ये याद रखना कि भाई डायमंड बिजनेस है वो सी रूट के द्वारा होता था अलग अलग कंट्रियों में, सारे जो कंट्री में सी रूट्स है उसमें. डायमंड studded ornament have been in a great diamond in foreign countries since long. Sorry for that, boys. I just a little bit tired. Diamond stud ornament have been in a great demand in a foreign countries since long. तो लॉन्ग टाइम से ही डायमंड जो घड़े हुए डायमंड होते हैं, स्टड यानी उसको फिक्स इट इनसाइड द पर्टिकुलर ornament, इनसाइड द पर्टिकुलर जो टूल्स होता है गोल्ड में, सिल्वर में, उसके अंदर फिक्स किया जाता है, उसको स्टड किया जाता है, तो वो ornament होता है. दैट वेरी फेमस इन द फॉरेन कंट्री सिंस लॉन्ग. The world famous diamond like Kohinoor and the Great Mogul were found from India only. Please underline this one. The world famous diamonds, the world famous diamond which is the world famous diamonds like the world famous diamond like Kohinoor and Great Mogul were found in India. Please underline.
As Indians were fond of diamonds and beaded ornaments, variety is found in the Great Deal. And earlier, the rich and the royal people used to wear diamonds, jewelries, and apart from gold ornament. देखो, इंडिया में बहुत ही वेराइटी में गोल्ड और डायमंड मिलता है और बहुत एंशिएंट टाइम से मिलता है। और हमारे जो राजा महाराजा थे वो लोग भी अपनी रिचता को दिखाने के लिए दे आर रिच एंड दे वांट टू शो ऑफ, तो ते अपने रॉयल पीपल जो होते थे वो लोग डायमंड वियर करते थे, पहनते थे ज्वेलर्स के रूप में, अपार्ट फ्रॉम गोल्ड और ऑर्नामेंट भी गोल्ड के पहनते थे। ठीक है, डायमंड, रूबीज, बीड्स, एमरल्ड्स एंड टोपर्स वर यूज्ड टू एड ऑन एंड ब्यूटीफुल द थ्रोन्स एंड क्राउन्स एंड ज्वेलरी लाइक ब्रेकल्स एंड गार्लैंड एक्सेट्रा। देखो, ये जो सारी चीज़ है, डायमंड्स, रूबीज, बीड्स, एमरल्ड्स एंड टोपर्स, वो सारी चीज़ों का यूज़ होता था एड ऑन द ब्यूटीफुल इन द थ्रोन्स एंड क्राउन्स। जो क्राउन्स और थ्रोन्स होता है, ठीक है, क्राउन और थ्रोन जो राजा के सर के ऊपर जो लगता है उसको क्राउन बोलते हैं, है ना, थ्रोन्स बोलते हैं। तो सारी चीज़ों को सजाने के लिए डायमंड्स और रूबीज और बीड्स का यूज़ होता था। ठीक है, और इस तरह की ज्वेलरी का यूज़, इस तरह का डायमंड्स का यूज़ होता था। और ज्वेलरी में कौन कौन सी ज्वेलरी में लगता था? ज्वेलरी लाइक ब्रेकलेट एंड गार्लैंड एक्सेट्रा, उसका भी यूज़ होता था अपने शरीर में वॉर करने के लिए, पहनने के लिए। ऑफ किंग्स, किंग के राजाओं के लिए। बीड वर्क इज ऑल्सो फाउंड प्रोमिनेंट इन गुजरात, प्लीज अंडरलाइन। जो बीड वर्क है वो भी इंडिया में बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत फेमस है। द ब्यूटीफुल बीड, कौन कौन से ब्यूटीफुल बीड है गुजरात में वो जरा आप देख लेना। तोरण, पचित, कॉट्स, बारी, डोर ग्रिल फेमस, चकड़ा ट्रेडिशनल वॉल पीस होता है वो, डेकोरेटिव कोकोनट यूज टू एट द टाइम ऑफ सेरेमनीज, लग्न, नारियल जो रहते हैं, जो लग्न प्रसंग जो हाथ में जो गुजरात में नारियल उठा के रखते हैं, उसको भी पूरी तरह से ग्रूमिंग किया जाता है, अच्छे से उसको सजाया जाता है। दैट इज़ लाइक बीड वर्क्स जो होता है। तोरण जो होता है, जो वी जस्ट पुट ऑन ऑन द वॉल, स्पेशली डोर वॉल, तो वहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे गुजरात में बहुत फेमस है। चकड़ा है, तो भी सारी चीज़ों को डेकोरेट करते थे बीड्स के द्वारा, तो उसको बीड्स कहते हैं। ठीक है, तो फिर मोडिया जो होता है, द नेट विच कवर द माउथ ऑफ द बुलोक हॉर्न, जो बुलोक होता है, जो बुलोक के हॉर्न का जो होता है, ठीक है, हॉर्न्स, उस हॉर्न्स के ऊपर अच्छी तरह से जो उसे सजाया जाकर उसको लगाया जाता है, तो उसको मोडिया बोलते हैं। वो जरा आप याद रखना, ये जो अंडरलाइन कर लेना। हैंड फैंस, हाथ का जो पंखा होता है वो भी पूरी तरह से डेकोरेट किया जाता है, बीड वर्क में आता है। एनिमल बैक कवर, एनिमल का जो पीठ के ऊपर कवर होता है वो भी, तो आर knitted in a unique artist way, unique artistic way. These are the example of the unique artistic way. ठीक है, India has been a leading country in jewelry since time of immemorial, right? So please underline कर लो इसको, India has been leading country in jewelry. ठीक है, India is the only country in the world where expertise can be seen in enamel work apart from the gold and silver work. So India is the only one country they have a expertise in the enamel work. ठीक है, enamel work में काफ़ी expert है इंडिया, अपार्ट फ्रॉम द गोल्ड और सिल्वर में भी बहुत ही फेमस है। ठीक है, एनिमल वर्क मीन्स द आर्ट, प्लीज अंडरलाइन कर लो अभी इसको। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एनिमल वर्क? Animal work means the artistic skill of inlaying the bright colors like red, green and blue in the gold silver ornaments like ring, bangles, earring, keychain, chain etc. क्या होता है एनिमल? एनिमल ये होता है कि जो कला होती है, आर्टिस्टिक स्किल होती है, वो इन लेइंग ब्राइट कलर में एकदम लेइंग उसको पड़ होते हैं उसके, लाइक रेड, ग्रीन और ब्लू में इन द गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट, गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट लगाए जाते हैं वो, लाइक रिंग, बैंगल्स, ईयरिंग, की, चेन एक्सेट्रा। उसमें जो एनिमल होता है उसमें लगाया जाता है, एकदम कलरफुल के एनिमल्स आते हैं, आपने देखे होंगे, तो लगाए जाते हैं, वो काफ़ी फेमस होते हैं। एक्सपर्ट ऑफ एनिमल वर्क आर सीन स्पेशल इन जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, हैदराबाद। ये सारा एक्सपर्ट एरिया है एनिमल वर्क के लिए। तो विच आर द एरिया विच फेमस इन द एनिमल वर्क? सो यू कैन गिव आंसर लाइक दिस, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, हैदराबाद। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज अबाउट जारी वर्क। यू हर्ड अबाउट जारी, राइट? जरी जिसको बोलते हैं,
Jari work. Jari work is seen in India since ancient time. Every artisan is, we can see in the ancient time. Jari work is seen in India since ancient time. Golden and silver threads are woven rich clothes, and embroidery is done with the gold and silver threads to decorate the clothes. ये चेरी से पूरा तरह डेकोरेट किया जाता है। जो गोल्ड के जो ऑर्नामेंट होते हैं, गोल्डन और सिल्वर थ्रेड्स होता है, जो पूरा थ्रेड बनाया जाता है उस जरी की वजह से, और वो वोवन विद द क्लोथेस, उसके वोवन किया जाता है, उसको सिया जाता है क्लोथेस के साथ। और एम्ब्रॉयडरी इज डन द गोल्ड एंड सिल्वर थ्रेड्स, तो एम्ब्रॉयडरी के द्वारा उसको गोल्डन थ्रेड बनाया जाता है। इस प्रकार से होता है। जरी का जो है ना एकदम लाइटिंग में, स्पेशली यूज सेन इन द नवरात्रि। सूरत इज अ प्रोमिनेंट प्लेस फॉर जरी वर्क। प्लीज अंडरलाइन इसको कर लो। सूरत है जरी वर्क के लिए फेमस है। मेक श्योर अंडरलाइन कर लो इसको। सूरत इज प्रोमिनेंट प्लेस फॉर जरी वर्क। Knitting and embroidery of Zardoshi work have a unique beauty. प्लीज़ इसको ज़रा हाईलाइट कर लो, अंडरलाइन कर लो, कुछ भी कर लो। Knitting and embroidery of Zardoshi work have a unique beauty. Which works have a unique beauty according to Jari work, right? So you can say knitting and embroidery of Zardoshi work have a unique beauty. Even artisans of Surat could make Even artisan of Surat could make beautiful dresses like a sari, panetar, gharchola, etc. border with the jari if needed. आपने देखा ही होगा कि सूरत में जो साड़ी और जो ड्रेसेस होते हैं वो भी जरी के साथ बनाते हैं। अगर किसी को रिक्वायरमेंट है कि अपने क्लॉथ्स में वो ही वांट टू पुट जारी ऑन हिज क्लॉथ, सो दे हैव अ सिस्टम, दे हैव अ आर्टिस्ट देयर अवेलेबल that can easily is easily knitting the jari and all that on his clothes, right? तो वो भी वो लोग बना सकते हैं साड़ी में, गरचोला में, पानेतर में, जो मैरिज के टाइम पे यूज़ होता है। तो जारी वर्क ये पूरा इंक्लूडिंग सूरत बहुत फेमस है इंडिया में। तो एंशिएंट टाइम से 2-3 चीज़ें जो आपको याद रखनी है। उसके बाद आता है मेटल वर्क यानी इनग्रेविंग, ठीक है। मेटल इज़ द वेरी फेमस, राइट? So metal work is also very old form of an art of India. बहुत पुराना फॉर्म है ये भी। और मेटल एज बिगेन एंड डेवलप आफ्टर स्टोन एज। प्लीज़ इसको ज़रा अंडरलाइन कर लो। मेटल वर्क है वो आप स्टोन एज के बाद उसका डेवलप हुआ, ये ज़रा आपको याद रखना है, ठीक है। मेटल एज बिगेन एंड डेवलप आफ्टर स्टोन एज। स्टोन एज के बाद मेटल एज का डेवलप हुआ है, वो जरा आप देख लेना, ठीक है। डेवलप आफ्टर स्टोन एज। द आर्टिशियंस ऑफ लोथल मेड डिफरेंट वेपन्स लाइक सिकल, ड्रिल यानी कौशो एंड नीडल्स एक्सेट्रा। देखो लोथल में काफ़ी चीज़ें जो वेपन्स के लिए यूज़ होती थी, लाइक सिकल, ड्रिल, जो कौशो होता है, एंड नीडल एक्सेट्रा, ये सारी मिली है तो मेटल की है। तो जरा अंडरलाइन इसको कर लो। विथ कॉपर एंड ब्रॉन्ज, ठीक है, ये भी अवेलेबल था उसमें। मोर एवर दे प्रिपेयर यूटेंसिल, आइडल्स एंड पॉट्स एंड आर्म्स एंड एम्यूनिशन फॉर वॉर वर मेड ऑफ मेटल। सो जो आर्म्स की तो साधन सामग्री थे जो वो भी मेटल्स के थे। एम्यूनिशन यानी जो वॉर के रिलेटेड जो इक्विपमेंट या जो weapons they want, they also made of metal, वो भी made up of metal थे, ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। ये जरा आप देख लेना, गोल्ड और सिल्वर को ऑर्नामेंट के लिए बनाया जाता था, ऑर्नामेंट के लिए स्पेशली। कॉपर, ब्रास एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक यूटेंसियल। तो अलग अलग चीज़ों के लिए बनाने के लिए कॉपर, ब्रास और ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया जाता है। एंड आइडल्स के लिए भी उसी का यूज़ होता है। वेयर एज आयरन वॉज यूज टू मेक अ इंस्ट्रूमेंट एंड वेपन्स। और जो आयरन का यूज़ है वो इंस्ट्रूमेंट और वेपन्स के लिए किया जाता है। देखो सारी डेफिनेशन आ गई मेटल की यहाँ पे, कि जो आर्म्स और एम्यूनिशन फॉर वॉर होता है वो मेटल के बनते हैं, ठीक है। आर्म्स और एम्यूनिशन फॉर वॉर मेड अप ऑफ मेटल। गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट के लिए है। कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज वह यूज़ फॉर यूटेंसियल चीज़ के लिए, जो उपयोगी चीज़ों के लिए बना जाता है। एंड आइडल्स के लिए भी वही यूज़ होता है। जबकि आयरन का यूज़ होता है इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए, या फिर जो खेती के साधु सामग्री इंस्ट्रूमेंट के लिए, या फिर वेपन्स के लिए, ठीक है। नाउ है वुडन आर्ट, ठीक है। ये दैट वे मैन, ट्री एंड फॉरेस्ट आर क्लोजली एसोसिएट विद ईच अदर, राइट। प्लीज
man, tree and forest. These are closely associated with each other. Initially wood was used as a firewood. देखो, इंसान का वृक्षों के साथ और जंगलों के साथ बहुत पुराना रिश्ता है, ठीक है। और स्टार्टिंग से ही, इनिशियली टाइम से ही जब इंसान वुड का इस्तेमाल फायरवुड के लिए करता है, जिनके बर्तन के लिए, है ना, एज ए ईंधन, ठीक है, एज ए फ्यूल के लिए वुड का इस्तेमाल करते थे, उसको फायरवुड कहते हैं, चूल्हा जलाने के लिए। लेटर ऑन उसके बाद क्या होता है, फॉर मेकिंग वेपन, उसके बाद उसमें लकड़ी से, वुडन से वेपन्स बनाए। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की, एंड अदर कंस्ट्रक्शन ऑल्सो वर्क, एंड ऑल्सो अदर कंस्ट्रक्शन दे डी। Gradually, step by step, wood was used for different purpose, like for making idols. उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे वुड का दे यूज्ड डिफरेंट वे, दे यूज टू वुडन एज अ पर्पज फॉर लाइक मेकिंग आइडल्स के बनाने के लिए, देन टॉयज़ बनाने के लिए, फॉर चिल्ड्रंस, बच्चों के टॉयज़ बनाने के लिए, देन वुडन के पिलर्स बनाने के लिए, विंडोज एंड डोर्स, राइट, स्मॉल हट, एंड ऑन टॉप ऑफ द टेरेस बनाने के लिए भी वुडन का इस्तेमाल होने लगा। थ्रोन्स, राजा जी की जो गद्दी होती है उसको बिठाने के लिए थ्रोन्स, चेयर, ग्रिल, सारे द मैक्सिमम यूटेंसिल यूज्ड विच इज़ मेड ऑफ वुड। आप जानते हैं मेड ऑफ वुड होता है सारी चीज़, वो भी बनाना। ग्रेजुअली दे स्टार्टेड टू लर्न हाउ टू यूज दैट पर्टिकुलर रिसोर्स। इन दिस वे वुड कार्विंग वॉज डेवलप्ड, राइट। इन दिस वे how did wood carving was developed, right? Explain the what are the ways what are the way wood carving was developed। ये भी आपका आंसर आ सकता है, ठीक है। वुडन फर्नीचर लाइक स्विंग्स एंड टॉयज और ईडर, संकट एंड गुजरात आर वेल नोन। प्लीज़ इसको जरा अंडरलाइन कर लो। वुडन फर्नीचर लाइक स्विंग्स एंड टॉयज, ठीक है। स्विंग यानी जो हिंचका आता है, हिंडोला, और टॉयज ऑफ ईडर एंड सानखेड़ा इन गुजरात आर वेल नोन। सानखेड़ा में, गुजरात के सानखेड़ा और ईडर है, वहाँ के टॉयज है, वुडन टॉयज और स्विंग्स है और फर्नीचर है, बहुत फेमस है। स्पेशली ईडर के टॉयज फेमस है, वुडन टॉयज, और सनखेड़ा का वुडन फर्नीचर फेमस है, ठीक है। तो सनखेड़ा का वुडन फर्नीचर बहुत फेमस है, लाइक स्विंग्स, ठीक है। तो वुडन फर्नीचर लाइक स्विंग्स वो सनखेड़ा का फेमस है, और टॉयज है, वुडन टॉयज, वो ईडर का फेमस है, ठीक है। वो जरा आप देख लेना। उसके बाद आता है इनले वर्क, ओके। इनले वर्क इज कंसिडर्ड टू बी द वेरी एंशिएंट आर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया किंग्स, एम्पर, रूलर एंड रॉयल पीपल ऑफ दैट टाइम यूज्ड टू वियर ऑर्नामेंट एज अ नेकलेस, ब्रेकलेट, क्राउन, रिंग, नोज रिंग, दामिनी and ticco, etc. was studied with the precious gems like diamonds, pearls, rubies, etc. And artisans were expert in the work of inlay art. Bikaner area of the Rajasthan more the popular in the inlay ornament. Please underline this one, right? Okay, so I am going to explain now. The inlay work is considered to be the very ancient time. The many art like wooden art, Akik arts and other metal arts. Like same way, inlay work is also prominent and also very old, very ancient, right? ये भी बहुत पुराना है. Because of the many kings and lords and Mughal emperor, they used to wear the inlay works and like किंग्स, एम्पर, रूलर्स, रॉयल पीपल्स, वो भी लोग यूज़ करते थे अपने ऑर्नामेंट्स में इनले को, बहुत फेमस था। जैसे कि किस प्रकार का ऑर्नामेंट, व्हाट काइंड ऑफ ऑर्नामेंट, तो नेकलेस, ब्रेकलेस, क्राउन, रिंग, नोज रिंग, दामिनी, दैट मीन्स टिक्को, ठीक है, एक्सेट्रा, उसके लिए यूज होता था। वह स्टड विद द प्रीशियस जम्स, वो बहुत ही प्रीशियस जम्स की वो स्टड किया जाता है, उसको फिक्स किया जाता था इन द डायमंड के अंदर। पर्ल्स, रूबीज एक्सेट्रा, ये भी बहुत है, प्लीज इसको अंडरलाइन कर लो। द प्रीशियस जम्स लाइक डायमंड्स, पर्ल्स एंड रूबीज, दैट यू कैन हाईलाइट दैट। आर्टिशन वर एक्सपर्ट इन द वर्क ऑफ inlay art. Please now underline, बीकानेर एरिया ऑफ राजस्थान इज मोर पॉपुलर फॉर inlay ornament, ठीक है। ये जरा आपको मेमोराइज रखना है, ठीक है। बीकानेर इज अ फेमस फॉर विच वर्क, inlay ornament, क्लियर है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट ऑल पॉइंट फ्रॉम माई साइड। नेक्स्ट वीडियो अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल वी विल अपलोड ऑन यूट्यूब, सो प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर योरसेल्फ, हैव अ नाइस डे, बाय।